This will be the next point. Then we will discuss the strategy. Then we will discuss the time planning, and after that, will discuss some of the experience that I have personally felt. And lastly, we will be taking the questions from the students and we will be trying to answer them at our best. Okay, great. This will be the agenda of session. Got to you people? दोस्तों Yes, क्या sir. ये बातें आप तक पहुंच गई? Yes, sir. Yes, sir. आप सभी लोग कमेंट में भी अपना आंसर कर सकते हैं. ओके, तो गाइस अब हम शुरुआत करते हैं. इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको बता दिया. अब हम यहाँ से आगे, अब पहले ये बता दूं कि ये सेशन किन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है. First of all, the students who are belonging to fourth year, who are preparing and applying for the various campus recruitments, various corporate sector job from on campus as well as off campus, it will be very helpful for them because they are very near to face the corporate sector exams as well as interviews. Secondly, this session will be very important for the students belonging to third year who are again having the aim and the planning to sit for the corporate sector interviews as well as the off campus exams. Along with that, for second year and first year student, if they would be here in the session, so this session will help them in order to get familiar with some of the facts that we generally get to know only after getting into fourth year or after being unplaced. So I'll be sharing the things. So for first and second year, it will be live an information session by using which they can actually select their career options and they can make their planning. For third year students who would have planned set up this aim for preparing for the company, it will be very important for them. And last but not the least, for final year students, it will be very important because I have heard that I have got many phone calls from students who were asking for that we have cleared Cognizant apti, we have been called for the interview, we will be going to give our TCS exam after 15 days. So guys, this will again will be very useful and I have myself accordingly planned in the same way. Okay, this will be our agenda. Now, I would like to first of all introduce myself in a very short manner so that you will be get aware with the facts that I'll be telling in the next session. Along with that, I would first of all introduce my partner mentor in this session, who is also one of our junior from batch 2017 to 21, Namrata Jadhav. She is presently working in Cognizant Solution, and I hope her experience of corporate sector will definitely help you in preparing as well as in while working with the company. Now coming back to me, as many of you people know, I am alumni of GCOEA from 2016 to 20 batch, belonging to mechanical engineering. In the same during my college life, we have been gone through many events, many things. Suraj Bhute is also one of the same friend of mine from this thing. So, and along with that, we had prepared for the exams for with the journey and by fortunately with the blessings of God, I could able to crack TCS along with that Cognizant Solution campus recruitment. Along with that, I was also being selected for one off campus company called as Reliance Retail that I had applied off campus. Yes, and I had been selected in it as well. Along with that, talking about interviews and communication skills and personality development, all of the sector, I could able to learn during my whole 4 years journey of GCOA, and I could able to achieve some of the achievements like one of them is Mr. Persona, one of them is magazine secretary, and many debate competitions and speech competitions as well. Just I have given all these interviews just in order to make you people comfortable with the thing that guys, the things that I will be going to say in the session has actually come after
I have when I have been guiding the students for my batch as well. Along with that, I have guided the students of one after batch, that is Namrata batch. And fortunately, by the means of Jode, I could able to get this platform, and I am deleting myself. So after all of this disclaimer, I want to start up with our session. Great. Now I request you, along with that, I advise you to have pen paper in the next session. First of all, coming towards the need of placement preparation assistance. नाउ अब हम आपको दो ऐसे पॉइंट्स बताते हैं जिसके ऊपर से आप ये सोच सकते हैं कि हम प्लेसमेंट की तैयारी क्यों करें। आप में से बहुत से दोस्त लोग ऐसे होंगे जो कि अभी तक इस जगह पे नहीं पहुंच पाए कि सर हम करें क्या। हम कंफ्यूज हैं, हम गेट की तैयारी करें, हम कैट की तैयारी करें, हम यूपीएससी करें, हम बिजनेस करें, हम कंपनीज करें। तो इस सब क्वेश्चन में जो कि बहुत लोगों के और से कॉमन है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं वो क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा जो आपने आपके फीडबैक फॉर्म में भरे थे जब आप एनरोल कर रहे थे। इसीलिए आपके क्वेश्चन शायद बीच में आ सकते हैं, इसलिए ट्राई टू बी अटेंटिव। तो जैसे भी अब बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हम कंफ्यूज है कि हम क्या करें, तो इसके ऊपर मैं आपको दो पॉइंट से सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ, वो है ये पॉइंट कि आप अपने आप से सोचिए। Now whatever points I will be delivering, it's totally technical point. Okay, so from now you have to think yourself in the technical manner along with the professional manner. So the first point I want to make in front of you is that you think that what is my return of investment. That is, now you have to think in the manner that, see, all of you people have been investing on yourself, your parents have been investing on yourself. आप आपके माता पिता आपके ऊपर पैसा देते हैं, आप अपने ऊपर टाइम देते हैं और एनर्जी देते हैं। आप 6th 10th तक पढ़े, आप 11th 12th पढ़े, आप सीटी दिए, आईआईटी जेईई दिए होंगे, आप में से कोई आईआईटी सिलेक्शन हुए, जो नहीं हो पाए वो यहाँ पर आए हैं और आप यहाँ पे भी अपना 2 साल 3 साल या 4 साल लेके आ गए। जब आप शुरुआत किए थे, जब आप इस कॉलेज को जब आप शुरुआत किए थे तब भले आप 18 साल के होंगे। 18 साल में जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि ये बच्चा छोटा है, लेकिन जब आप यहाँ से जा रहे होंगे कॉलेज से, तब आप 21 साल या 20 साल के 22 साल के हो चुके होंगे। नाउ अब मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि आपको खुद से पूछना है, वो ये है कि व्हाट इज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर्स the moment at which you will be stepping outside the college. Just think, जिस दिन आप ये कॉलेज को छोड़ के जा रहे होंगे उसके बाद उसमें आपके पास क्या होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे हमारे पास मेमोरीज होंगी, दोस्त होंगे, ये होगा वो होगा। बहुत अच्छी बात है, सभी के पास होते हैं, हमारे भी पास भी थे। लेकिन इससे ऊपर अब हम आपको ये पूछते हैं कि व्हाट इज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास ऐसा आखिरी के दिन क्या होगा। आपको ये सोचना जरूरी है। अगर आप ये सोचेंगे तो आप गारंटी यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि सर अब मुझे करना क्या है। अगर आप ये सोचेंगे, आप एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए और उसके ऊपर लिखिए जो आपकी नोट में, व्हाट इज माय रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट द मोमेंट व्हेन आई विल बी लीविंग दिस कॉलेज। जब मैं 22 इयर्स की हो चुकी होंगी या हो चुका होगा। This is the first question. Second point that I want to make, again from this you will get total clarity कि सर अब हमने चुनना क्या है। वो ये है या फिर हमने प्लेसमेंट प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए। उसका सेकंड पॉइंट ये है, वो है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ये होती है, जैसे आप देखते हो कि आज आप एक साबुन लेने को जाते हो, वो 10 रुपए का होता है, उसका कुछ वेट होता है। लेकिन अगर यही साबुन आप आज से 2 साल पहले देखते या 4 साल पहले देखते तो उसका रेट शायद से सेम होगा, तो उसका क्वांटिटी या वेट जो होगा वो कम हो चुका होगा। अगर जहाँ सीधी सी बात है, अगर तेल पहले 100 रुपए किलो मिलता होगा तो अब वो या तो 120 रुपए किलो मिलता है। अगर आप बोलेंगे सर हमको 100 रुपए में तेल चाहिए, तो आपको 800 ग्राम तेल देगा। एज सिंपल एज दैट। इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू।
तो जैसी हर चीजों की एक मार्केट वैल्यू होती है, टूथपेस्ट से लेके, पेन से लेके, हर चीज से लेके, वैसे ही एक मार्केट वैल्यू होती है हमारी ह्यूमन मार्केट वैल्यू। अब ये पॉइंट आप आपकी बुक में लिखिए। अब आपको अपने आप से दूसरा क्वेश्चन ये करना है कि व्हाट इज माय ह्यूमन मार्केट वैल्यू। ये बात आपको आपके पॉइंट में डायरी में लिखना है, पॉइंट नंबर 2 में ये व्हाट इज माय ह्यूमन मार्केट वैल्यू। और आप अपने आप को 5 सेकंड लेकर फिर ये सोच लेंगे कि मेरी मार्केट वैल्यू क्या है। इसका मतलब है जब आप आज घर से निकल के मार्केट में चल जाएंगे और आप पूछेंगे कि आज मैं अपने आप को अपने आप से कितना क्या वैल्यू रखता हूँ, क्या मैं अपने आप के लिए 2 रुपए भी खुद कमा सकता हूँ, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि आप प्लेसमेंट की तैयारी क्यों करें। और थर्ड बट नॉट लीस्ट, अब ये पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर आए हैं एक हम्बल बैकग्राउंड से, जो कि ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जो कि कोई ना कोई टाइप का लोन लेके अपनी फीस भर रहे हैं, जिनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उनके लिए है मेरा ये थर्ड पॉइंट। और वैसे ये पॉइंट सभी के लिए लागू होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये लोग इसके ऊपर बहुत ध्यान से सोचें। और ये थर्ड पॉइंट आप सभी लोग अपनी किताब में लिखे, वो ये है जो हम कह रहे हैं नेक्स्टली, लाइफ इज ऑल अबाउट नीड्स वर्सेस विशेस। Life is all about needs versus wishes. Life is all about needs versus wishes. इसका अर्थ ये है कि लाइफ आपको हर वक्त ये 2 तराजुओं के ऊपर तोलती है। पहला होता है नीड, दूसरा होता है विशेस। और अब आपके ऊपर निर्धारित होता है कि मैं किसको चुनूं, नीड को कि विश को। और आपको एक बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ बताऊं तो वो ये है जो आपको बहुत एक्सपीरियंस के बाद समझेगा या समझ चुका होगा। आप याद करें आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आया होगा जब आपको चुनना पड़ा होगा नीड वर्सेस विशेस में। जब आप 12th दिए होंगे, यू माइट हैव अप्लाइड फॉर सीओईटी और बीजेटीआई और आईआईटी एनीथिंग, वो आपकी विश थी, लेकिन जब आपके पास रिजल्ट आया तो आपके पास उसमें से जो बेस्ट था वो आपकी नीड थी, तो आपने नीड को चुना। ऐसे कई टाइम आए होंगे जब आपको विश और विशेष और नीड के बीच में चॉइस करना पड़ता है। और हाँ, हमारे एक दोस्त ने बहुत अच्छा है, नीड वांट्स विशेस। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है बात। अब हम इसको टॉपिक से ऑफ टाइम ना हो जाए, इस वजह से स्वराज चौहान मैं आपका पॉइंट जरूर उठाऊंगा आगे जाके। तो आपको ये पता चल जाएगा आगे जाके या फिर लाइफ की कुछ चीजों के साथ कि लाइफ में हर वक्त हमको नीड और विश में से एक को चुनना पड़ता है। बात ये नहीं है कि नीड को चुन लेंगे तो विश खत्म हो जाती है। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पहले नीड को फुलफिल करते हैं, वहां पे जाके स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं, कॉन्फिडेंस प्राप्त करते हैं और विश के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे कई दोस्त लोग अलॉन्ग विद मी, मैंने और हमारे कई सीनियर्स और इस दुनिया के कई लोगों ने करना था, जब मान लीजिए उनको यूपीएससी करना था, दे फाइंड दैट इट विल बी टेकिंग टाइम, दे फाइंड दैट इट्स माय विश, they find that my need is something different. That's why the people get into this. They get into the company along with working. They push themselves every day. They invest themselves. They study. They could able to crack the things. बस जब वो लोग बने IAS तब उनके पास ये बात थी कि बाकी लोगों को ये अनुभव नहीं थे कि एक कठिनाई से दूसरी कठिनाई की ओर जाते कैसे हैं। उस समय पर वो बहुत पक्के हो गए थे। और तो यही हमारा थर्ड पॉइंट है जो कि मैं आपकी डायरी में लिखना चाहता हूँ कि आप लिखिए और आप इस पर सोचें भी कि लाइफ इज ऑल अबाउट नीड्स वर्सेस विशेस। और इसका बिटर ट्रूथ ये लाइन है जो कि आप जरूर लिखें अपनी डायरी में, जो कृष्ण भगवान ने गीता में भी बोले हैं, वो ये है कि आवश्यकताएं और अपेक्षाएं, मतलब नीड्स एंड विशेस, इसमें हमेशा ये बात का स्मरण रहे कि आवश्यकताएं कभी अधूरी नहीं रहती।
हमारा आवश्यकता है खाना, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप दिन भर या इस पृथ्वी का कोई भी जीव दिन भर के लिए भूखा रह जाएगा। वो उगता तो खाली पेट है, लेकिन भगवान उसको खाली पेट सुलाता नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि आवश्यकताएं कभी अधूरी नहीं रहती और अपेक्षाएं अपेक्षाएं कभी भी पूरी नहीं होती। वो एक होने के बाद ही दूसरी जनरेट हो जाती है। और इसी से जुड़ा हुआ एक हमारा दोस्त है जिसने ये पॉइंट रखा था, विशेष वांट्स नीड्स। सही बात है, हर विश की शुरुआत एक नीड से ही होती है। बस यहाँ पे पॉइंट आपको ये सोचना है स्वराज भाई, कि आपको पॉइंट ये सोचना है कि व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन। बात ये नहीं है कि राइट और रॉन्ग क्या है। अगर ये चौथा पॉइंट है जो कि आप जरूर लिखें आपकी किताब में। बात ये, thing is not that what is true and what is false, what is right and what is wrong. The thing is what is useful, what is useful at this time. And this will definitely give you answer of your question that why I am required to choose one field and why I am required to prepare for placements. अब अगर ये चार पॉइंट आप कर लेंगे, जैसा कि स्वराज भैया को अच्छा लगा, आप सहमत हुए, मुझे खुशी हुई। बात ये नहीं है जो चौथा पॉइंट मैंने बोले कि ट्रू और फॉल्स क्या है, बात ये भी नहीं है कि राइट और रॉन्ग क्या है, बात ये है कि इस टाइम पे यूजफुल क्या है। अब ये चार पॉइंट यदि आप अपने आप से सोचें तो आपको जवाब मिल जाएगा कि मैंने कौन सी फील्ड चुनना चाहिए, मैंने फील्ड क्यों चुनना चाहिए, मैंने मेरा एम क्यों चुनना चाहिए, और मैंने यदि प्लेसमेंट प्रिपरेशन चुनना चाहिए तो क्यों चुनना चाहिए, और प्लेलिस्ट क्यों होना चाहिए। ये होगी हमारी नीड। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट पिकअप करेंगे, वो है स्ट्रेटेजी। अब यहाँ से फिर हम बहुत इंपॉर्टेंटली सजेस्ट करेंगे। अगर मेरे पास एक स्क्रीन होती तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाता, क्योंकि अगला पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये है कॉन्सेप्ट। अभी हमारे पास स्क्रीन की व्यवस्था नहीं है। हम आपको इस सेशन के बाद एक पीडीएफ शेयर करेंगे जिसमें से आपको, अगर आपने उसको पढ़े, केवल 3 पेजेस की पीडीएफ है, मैंने हैंड रिटन उसको बनाया हूँ। यदि आप उसको पढ़ते हैं तो आप मेरे आगे के पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सहयोग करें, यू विल कोऑपरेट विद me along with that your pen and paper in your hand. So now next point I want to make is that strategy for the placement preparation. अब स्ट्रेटेजी कैसी होती है, अब यहाँ पे हम लोग ये सोचेंगे। हर प्लेसमेंट्स में 3 उनके कोई भी कंपनी का आप इंटरव्यू दें, दे एक्चुअली categorize their placement and recruitment procedure in the 3 formats. First format is for her giving for the aptitude round. In that aptitude or qualifying test, whatever they take, they include 2 sections mainly. First one is aptitude, second one is technical. अब यहाँ पर टेक्निकल जो है वो फिर कैटेगराइज होता है। अगर आप CSIT की कंपनी देते हैं तो आपके टेक्निकल में जो सब्जेक्ट्स आते हैं मैं उनका नाम देता हूँ, उसमें कोई ना कोई लैंग्वेज से ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें C हो सकता है, C++ हो सकता है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट TCS तो उसमें C होता है, C++ होता है और DSB होता है, डाटा स्ट्रक्चर्स। इतनी चीजें वो लोग चेक करते हैं कि आपको आती है कि नहीं, क्योंकि TCS या मास रिक्रूटमेंट कंपनीज कॉग्निजेंट जो हमारे कॉलेज में आती है वो सभी के लिए ओपन होती है, इसलिए वो ऐसा पेपर सेट करते हैं कि सभी ब्रांच के बच्चे उसमें दे पाए। सेकंड पॉइंट आई वांट टू मेक इज दैट जो लोग ऑफ कैंपस कोर कंपनीज के लिए अप्लाई करेंगे या ऑन कैंपस कोर कंपनीज के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए जो होता है टेक्निकल राउंड, उसमें होता है उनका कोर सब्जेक्ट जो उनके ब्रांच का होता है, उसके ऊपर उनको क्वेश्चंस आते हैं और वो उनको पढ़ना होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो उनको देना होता है। टॉकिंग अबाउट एप्टीट्यूड जो हमारा अब यहाँ से आप समझ सकते हैं, प्लेसमेंट प्रिपरेशन जर्नी एक बॉक्स बनाइए, उसके 3 ब्रांचेस बनाइए। पहला ब्रांच होगा एप्टीट्यूड, दूसरा ब्रांच होगा टेक्निकल, तीसरा ब्रांच होगा इंटरव्यू। तो जैसे हमने एप्टीट्यूड की बात की है, एप्टीट्यूड विल कंप्राइज ऑफ 3 सेक्शंस, फर्स्टली क्वांट,
quantitative aptitude, second one will be logical reasoning, third one will be English. तो आपको इनके अनुसार अपने आप के लिए प्रिपरेशन करना है। अब इसके लिए प्रिपरेशन के सोर्सेस वो मैं पीडीएफ में अच्छे से लिखा हुआ हूँ, तो आपको साइड बाय साइड मिल जाएंगे। हमने उसमें यूट्यूब चैनल भी लिखे हुए हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से मैंने पढ़ा हूँ। वो वेबसाइट्स लिखे हैं जहाँ से आपको सभी का मदद मिल सकती है फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल और इंग्लिश के लिए भी। सेकेंडली टॉकिंग अबाउट टेक्निकल में सीएसआईटी का टेक्निकल, उसके लिए भी हमने पीडीएफ में जो आपको प्रोवाइड की जाएगी उसमें हमने वेबसाइट, सोर्सेस सब कुछ लिख दिया है, वो आपको मिल जाएगी। और थर्ड वन, अब नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द along with that mostly asked part, that is interview. How to prepare for the interview? I have gotten many calls, as I have already said that some of the students who are actually participated in this session for that because they will be handling their cognizant as well as TCI as well as the intelligence in the future manner. तो अब हमारे हैं इंटरव्यू के ऊपर। यहाँ से आगे वाला पार्ट फिर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को फोकस होकर सुने। अब ये जो इंटरव्यू का नाम हमने लिया, इंटरव्यू का सबसे पहले आप अपना डेफिनेशन क्लियर कर लें। और अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं अगले 5 सेकंड आपको देता हूँ, आप अपने आप से ये सवाल पूछे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू को, अगर मैं आपको कहूँ इंटरव्यू इक्वल्स टू एक वर्ड में डिफाइन करो, एक वर्ड में, तो क्या हो सकता है वो वर्ड? ये चीज का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप पेस्ट करें। I want you to answer this. What is meant by interview in your language? In one word. Guys, yes. विवेक, ज्ञानेश्वर, बढ़िया, बहुत बढ़िया रिप्लाई है। मैं आपके रिप्लाई सुनना चाहता हूँ। फोर्थ ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, एवरीवन, प्लीज आंसर दिस। साक्षी टेंडुलकर, यस, ग्रेट। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन। इंटरव्यू को इक्वल्स टू एक वर्ड में डिफाइन करिए। बुलबुल श्रीवास्तव, ग्रेट। स्वराज चौहान, ग्रेट। आत्म परीक्षण, बहुत बढ़िया। मोहिनी, great. So guys, as we have seen that we have gotten many replies, so great. Now I will, आप सभी के रिप्लाई बहुत अच्छे हैं और आप सभी के रिप्लाईज को बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंट भी किया। मैं आपको जैसे कि एक बात बता दूं, जो अब मैं आपकी डायरी में फिर चाहता हूं कि आप सभी के रिप्लाई सुनने के बाद और उससे बहुत खुश हो जाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ मेरे अनुसार कि इंटरव्यू क्या होते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार मुझे सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है आज तक, क्या मैंने खुद भी देखा है कि इंटरव्यू में हमसे क्या पूछा जाएगा। So what I'll be asked in interview? Sir, please tell me that how will I able to handle the interview? Sir, please tell me that what kind of question he will be going to ask. Sir, whether he will ask me very tough questions. Sir, how I feel very fear when talking about the things. ऐसा सभी पूछते हैं और इस लोग आखिर में क्रॉस चेक भी करेंगे कि कोई चिंता का विषय नहीं। ठीक है, अब जैसे कि जो लोगों ने 6 बोला है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले 5 पॉइंट्स जल्दी अपने चैट में लिख दीजिए ताकि हमारे बाकी के दोस्तों को फिर फायदा हो जाएगा। And so now I am coming to the 6th point that I want you to people write in your diary for the interview is that interview is not about what to think for what he will be going to ask to me. No. Interview is not to think about what he will be going to ask me. Interview is about what I want to deliver him. Interview is about what I want to tell him. Interview is about what I want to make familiar with him about myself. So again, in one sentence, interview is not about to think what he will be going to ask to me, because you cannot find out this answer. It is very vast field. The thing which is in your control is that
You have to think about what I want to tell him about myself. So this is the next thing. और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे स्टूडेंट दोस्तों से कि अब वो जो भी पॉइंट्स को चैट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि हमारे बाकी के दोस्तों को उससे मदद मिल जाए। तो अब आपको नाउ फोकस ऑन दिस पॉइंट व्हिच आई ट्राई टू मेक कि आपको ये सोचना है कि हमको उनको क्या बताना है। अब हमको उनको क्या बताना है, सर आपने ये तो बता दिया कि हमको उनको क्या बताना है, लेकिन उनको बताने से पहले ये तो बताओ कि हमको खुद को क्या बताना है, क्योंकि जब हम अपने बारे में खुद को बता पाएंगे तभी तो हम इंटरव्यूअर को ये बता पाएंगे कि वो हमसे क्या चाहता है। देखिए गाइस, जैसे कि ये बहुत इजी सी बात है, जैसे कि इंटरव्यू में क्या पूछे जाने वाला है, ये सभी कॉमन क्वेश्चंस है जो कि आपको हर रिसोर्सेज से मिल भी चुके होंगे, आप पढ़ा करेंगे तो भी मिल चुके होंगे। जो कि नॉर्मली पैटर्न होता है इंटरव्यू का, वो अब मैं कवर करना चाहता हूँ और मैंने पीडीएफ में भी लिखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अभी केवल आप मुझे सुनिए। वो ये है, इंटरव्यू शुरुआत होती है, सबसे पहले वो लोग आपसे ये पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद आपको वो ये पूछने वाले हैं और आगे लेके जाने वाले हैं। टॉकिंग ओवर टेक्निकल मैनर्स, तो इंटरव्यू अब आप जो ब्रांच बनाने को कहा मैं, उसको इंटरव्यू के ब्रांच को फिर 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए। पहला सेक्शन होता है टेक्निकल राउंड। कई बार पहले मैनेजरियल राउंड लेते हैं और बाद में टेक्निकल राउंड लेते हैं। पहले तो आपको यही क्वेश्चन पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जिसके कारण उनको पॉइंट मिल जाए कि वो आपको आगे क्या क्या बोलेंगे और आप वो आपको आगे वही पूछेंगे जो आपने टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में बोल दिया है। तो ये क्वेश्चन का सबसे पहले आप आंसर तैयार करें, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और वही मैंने आपको बोला, इट इज नॉट अबाउट व्हाट ही विल बी गोइंग टू आस्क, इट इज अबाउट व्हाट यू विल बी गोइंग टू टेल। इसीलिए अब आप सोच ले, इमेजिन कर ले कि आप एक ऐसे ग्राउंड में खड़े हैं जहां पे आप बैटिंग कर रहे हैं, जहां पे सामने से बॉल आ रही है, कोई भी फील्डर नहीं है, बॉल फुल टॉस है। अब डिपेंड करता है कि आप बैट कैसे घुमाते हैं। इसलिए वो आपको पहला क्वेश्चन ये देते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज दे themselves want to give full chance to you। अब आप इसका कैसे उत्तर देंगे इसके ऊपर आपका आगे का इंटरव्यू डिपेंडेंट होगा। तो आपको ये क्वेश्चन की तैयारी आप अच्छे से करके रखें, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर अब आपने ये तो बता दिया कि तैयारी करके रखना, ये तो बताइए कि तैयारी इस क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करें, व्हाट शुड दिस क्वेश्चन कंप्राइज ऑफ। तो इसका आंसर देने के लिए एक बड़ा समय लगेगा और वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो उसका आंसर कौन कौन सी चीजों में मिल सकता है। तो अभी के लिए मैं आपको केवल ये बोल सकता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से बनाकर रखिए। नेक्स्टली, जैसे मैंने आपको कहा, यू विल बी टेस्टेड विद टेक्निकल राउंड, जिसमें आपको टेक्निकल राउंड के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये पूछा जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज पढ़े हुए हैं और उसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे ये पूछा गया था कि कंप्यूटर साइंस आपने क्या पढ़े, मैंने बोला सर मैं सी लैंग्वेज पढ़ा हूँ। और फिर उन्होंने मुझसे पूछे क्या क्या पढ़े, तो मैंने बोला सर मैं एरे पढ़ा, स्ट्रिंग्स पढ़ा। उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछे, वही मैंने बताया। सेकेंडली, आपको ये जब पूछ लेने के बाद आपको आपके ब्रांच का भी कुछ पूछेंगे, इफ यू वुड नॉट बी बिलोंगिंग टू मैकेनिकल, इफ यू वुड नॉट बी बिलोंगिंग टू सीएसआईटी। सीएसआईटी वाले स्टूडेंट्स को यही राउंड को का ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपको ये पूछ लिया कि आपने बीएस पढ़े और आपने बोल दी कि मैंने स्टैट्स और क्यू पढ़ी हूँ या पढ़ा हूँ, अब आपको वो स्टैट्स और क्यू के और अंदर पूछेंगे जब तक का आप एक पॉइंट तक का उनको सेटिस्फाइड ना कर दे। तो आपको बताऊंगा, वो आपसे सिर्फ बेस का क्वेश्चन पूछते हैं, सरफेस क्वेश्चन। अगर मैं एग्जांपल भी बता दूं कि मुझे क्या पूछा गया था, मुझे ये पूछा गया था क्या पढ़े हो, मैंने बोला स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स के कुछ जो हमारे को प्री डिफाइंड फंक्शंस है वो पूछे गए। सिंटैक्स पूछा गया था, मुझे स्पेसिफिकली बताओ तो सिंटैक्स पूछा गया था कि एक स्ट्रिंग में अपना नाम लिखो, इतना बेसिक पूछा गया था। स्ट्रिंग में अपना नाम लिखो और वो प्रोग्राम लिख कर बताओ, तो वो मैंने लिखा। मुझे लूप्स के ऊपर पूछा गया, व्हाइल, डू व्हाइल, मुझे कंडीशनल स्टेट्स पूछा गया और यही चीजों को मैं बताता गया और मेरा टेक्निकल राउंड हो गया। उसके बाद उन्होंने मैकेनिकल के 2 क्वेश्चन पूछे थे मेरे को, जो कि बहुत इजी थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, क्योंकि वो उनको खुद को याद नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉट अ स्टूडेंट, दे आर पीपल वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट देयर
have left their studies before 20 years. So that's why you are not. बहुत से लोग आप ये सोचते होंगे कितना कठिन पूछेंगे, मेरे लाल कुछ भी नहीं पूछते, सिर्फ सरफेस का क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैकेनिकल वालों के लिए मैं कहूँ तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कहूँ जो कि मैं मेरी एक दोस्त है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, प्रोफेशनल बिलोंगिंग टू थर्ड ईयर, उन्होंने ENTC, उन्होंने ये मुझसे पूछे थे कि सर ये कितना टफ क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं उन्हें बताता हूँ बहुत इजी पूछते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कहूँ तो मैं आप दे माइट इवन आस्क यू एम्पियर्स लॉ, they might even ask you Ohm's law, they might even ask you the units of current, ठीक है। तो ये भी वो आपको पूछ सकते हैं क्योंकि ये वो चीज है जो कि 11, 12, 10 तक थी, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो CSIT से भी हो सकता है, तो वो कैसे याद करें, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में कौन सा है। तो इसीलिए वो चीज पूछी जाती है जो कि 10, 11, 12 तक सबको पढ़ाई गई है। अब हम सबको पता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच की करंट का यूनिट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है। ये हो गई बात। आई होप आई कुड एबल टू कवर मैकेनिकल सिविल। मैकेनिकल सिविल के लिए वही इंजीनियरिंग के बेसिक मुझे ये का क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने इसको जवाब दिया था, जो कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर था। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मैंने एक रेफरेंस क्वेश्चन भी बता दिया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स मैनेजरियल, ऐसा करके आपका टेक्निकल हो जाता है। इसमें कॉग्निजेंट वालों के लिए स्पेशली बोलूंगा, इसमें नियरली वो लोग आपके अच्छे स्टूडेंट को कट कर देते हैं। ये हो गया टेक्निकल राउंड की बात। सेकंड आता है मैनेजरियल राउंड, उसमें ये देखा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। जैसे कि हमारे कई दोस्तों ने यहाँ पे बोले भी थे, पर्सनालिटी टेस्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन तो एक बड़ा वर्ड है, पर्सनालिटी टेस्ट को स्पेसिफिकली बोलूं तो इस राउंड में चेक किया जाता है मैनेजरियल राउंड में। और मैं आपको फिर बता दूं, मैं आपको ये स्टैंडर्ड मैनर बता रहा हूँ, कई कंपनीज बहुत छोटा सा इंटरव्यू लेके खत्म कर देते हैं, तो मैं स्टैंडर्ड मैनर बता रहा हूँ ताकि अगर आपको बड़ा स्टैंडर्ड मैनर पता चल जाए तो आप स्मॉल मैनर्स को ऐसे हैंडल। तो जैसे हमने कहा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैनेजरियल राउंड में वो आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं, इसमें आपकी सभी स्किल्स चेक करते हैं कि आप में कितनी है, जो कि मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। एप्टीट्यूड से उन्होंने आपका एप्टीट्यूड स्किल चेक कर लिया, टेक्निकल से टेक्निकल स्किल चेक कर लिया। यहाँ पर आपका पहला स्किल चेक होता है कम्युनिकेशन स्किल, जिसके अंदर आप बहुत सारी स्किल को इंक्लूड कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन स्किल और डिबेट स्किल और एनी काइंड ऑफ दीज whatever skills that are coming under the category of communication, that how do you communicate with the people, because when you will be going to get into company, then you will be required to communicate with your clients who will be sitting in maybe in India, in foreign. You will have to communicate them, you will have to convince them, and you will have to handle them. I will tell you, मुझे इसका बहुत फायदा हो रहा है, because after getting into DCS I am so lucky, because I consider myself very lucky that we have been dealing with the clients in Netherlands. So in day-to-day manner, I talk with the people in Netherlands, in Egypt, in Finland, in China, every kind of people. So I feel very useful for this thing, that God, thank you for providing me this skill, along with that this kind of project and job. And that's why I'm enjoying very happy. Coming again to the next fourth point in communication, that is adaptation skill, जो कि इसके ऊपर मैं बहुत फोकस करता हूँ। adaptation skill का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से कि what is meant by adaptation? Again I am asking you, write down these skills point by point. adaptation skills का कोई आंसर दे सकता है आप में से? What is meant by adaptation skill? And this is the most important skill and demand of present. What is meant by adaptation skill? Can anyone reply? Fitting in any situation. Very great, very great. Can anybody get closer to it? If the situation occurs in company, what will you do to? बहुत बढ़िया, flexibility, बहुत बढ़िया, दीपाली बहुत बढ़िया आंसर. Waiting for the answers.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्राजक्त का बहुत बढ़िया आंसर। अडैप्शन स्किल बहुत बढ़िया, बिल्कुल प्रणय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो गाइस नाउ along with your very great replies, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। I would like to answer you my reply. Adaptation skill मैं फिर आपको कहूँगा, write down in your diary. Adaptation skill is the most important requirement requirement of present, because present अडैप्शन स्किल का मतलब होता है मेरे अनुसार, जैसे कि सब लोगों ने बोल चुके हैं, वॉट एवर दैट इज कमिंग टू यू, हाउ आर यू अडैप्टिंग इट, हाउ यू आर यू एक्सेप्टिंग इट, how you are going in forward direction with it, how are you working on it, and how are you achieving the excellence over it. Because the reason is that whatever corporate sector job you will get in, specifically talking about CSIT, whatever technology you are learning today, it will get told after 1 or 2 years. Every after 1 or 2 years, there will be updation in it. अगर आप कहते हैं आज कि मैं आज जावा पढ़ लूंगी और मेरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है मेरे लाल या मेरी लाली। आज से 1 साल बाद आपको इसमें एडवांसमेंट लाना ही होगा, आपको एडवांस जावा सीखना ही होगा। इफ यू वांट टू सस्टेन एंड इफ यू वांट आंसर देना है। अब ये सब तो मैं बताऊंगा, अब आप पूरा कनेक्ट करते चलिए कि मैं ये पूरा सेशन आपको पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पॉइंट तक लेके जा रहा हूँ जो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था आपसे। पहला पॉइंट, सर व्हाई शुड आई प्रिपेयर फॉर कंपनी प्लेसमेंट्स और एनीथिंग, व्हाई शुड आई फिक्स माय एम, बिकॉज गाइस अल्टीमेटली व्हाट यू आर हैविंग इन योर हैंड इज दैट return of investment, market value and need versus wishes। क्योंकि तभी आपकी, जब आप अपने आप को अडेप्ट करेंगे, अडेप्शन स्किल लाएंगे, तभी आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी। अदरवाइज आपकी मार्केट वैल्यू वही रहेगी, इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, आपकी मार्केट वैल्यू को अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो वो कम हो जाएगी। Again, so adaptation skill, whatever that comes to you, you have to accept. After adaptation skill, I would like to come to next important skill that if interviewer wants in you and he will check you on this, pressure handling. How do you handle the pressure of the situation? And he may take you in some circumstances. He may even ask you कि ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आएंगे, जो कि ऐसा हुआ है हमारे स्टूडेंट्स के साथ जिनको मैंने गाइड किया है, मैं ना अभी वो आगे जाके आपको सेशन पर मिल सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसे आपको कंडीशन देंगे जिसमें आपका प्रेशर हैंडलिंग स्किल। यस, ओके। सूरज सर, यस सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सूरज सर, Yeah. yes, I would like to give you control once again. Please admit the students who want to come. सूरज सर क्या है? वो तुम्हारे स्किल से होगा, मीन्स आई एम नॉट एबल टू एडमिट देम ऑल because those who create the meet they can Sorry to interrupt, sir. I have created the meet and I'm regularly adding the students. ग्रेट। तो सारांश, तो स्वराज भाई, जो जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं आप प्लीज उनको राधिका तक कांटेक्ट करने को बोलिए, वो उनको ऐड करें। ओके, सो गाइस कैन वी अगेन कम बैक टू अवर पॉइंट? Guys, can we come back to our point? Please reply with yes. Yes, sir. Yes, great. Yes, great. So the skill which I was discussing is adaptation skill. After adaptation skill, we have to develop this quality of pressure handling. That how are you handling one pressure? And they may give you some of the questions and to check whether how do you handle that pressure. अब यहाँ पे आप बहुत सारे, so sir, how will I going to handle questions? And you could not able to answer all the 9. It depends how are you giving the answer of 10th question.
This is again one of the golden point that I have learned from after my study, my throughout experience. हो जाते हैं तो जैसे कि हर सिचुएशन में होता है, ये कहीं पे भी आप लाइफ को लगा लें, हम हर वक्त यही सोचते हैं कि मुझे क्या नहीं आया, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि भाई मुझे ये तो आने वाला है। और जो लोग यही सोचते रह जाते हैं कि ये मुझे नहीं आया, वो ही पॉइंट में घूम घूम के रह जाते हैं और हम उस चीज को छोड़ देते हैं। गेट का एग्जाम मैं खुद लिख रहा हूँ, मैंने आईआईटी भी लिखा है, मैंने ये पॉइंट खुद पे अप्लाई किया है कि मैं यही देखते हुए रह गया कि मेरे को पहले 4 क्वेश्चंस नहीं आए, बट आई नेवर गोइंग टोटली प्लेन, नो प्रॉब्लम। It depends that how are you answering the question number 10. If you answer it, then it's totally done. उसके बाद कुछ बचता ही नहीं, और आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये होगा कि इस व्यक्ति को 9 आने क्वेश्चन आने के बाद भी ये डटा रहा, he handled the situation and he come up with the solution of 10. The need of market is improving efficiency. And I suggest you people to write down this line. Need of market is increasing efficiency. Need of market is increasing efficiency. Confirm once you people would have written it. Confirm once you people would have done it. Need of market is increasing efficiency. I want to have a reply from you people in the chat box if you would have liked this point, written this point. Need of market is in improving efficiency. Along with this definition, I would like to add one more good point, and it can be actually optional to this definition. Definitely, this is very perfect definition what we actually learn in our college books. Output upon inputs. So again, as outputs are many, inputs are many. Very great, very great. So along with this, I will actually give you one very clear-cut definition of efficiency, that is amount of work done divided by want to come. Now we have discussed strategy. Now again the point we are actually discussing is very important, because जैसे हमने आपको बोल दिया efficiency के लिए time important है, और ये ऐसा अकेला वर्ड है इस दुनिया में, you would have heard for many times. Time is money, time is this, time is that. Can anybody tell you? Can anybody tell your personal definition of time? What do you think about time? What is great? Time is like great. Life great. Guys, please put your thoughts here. What is meant by time to you? Again, then get into this thing, efficiency. Now we are coming to the next point. Why we are discussing this between study and preparation? We know people have used that. I am studying for the placements. No, very lesser time you will get to hear that I am studying for UPSC. I am studying for GATE. I am studying for CAT. I am studying for this, that. You will get to hear this thing very less, because you will instead what you hear is that I am preparing, studying and preparing, because preparation is always time bounded. When you join coaching, they tell you that this preparation is for 3 months. This course will go for 3 months. This is for this month. So time is constrained. I want you people to write this point in your diary. Preparation is always time bounded. Yes, Danish, I will definitely come to the point. HR as well. Well, please let me now move on with the flow. Preparation is time bounded. Make sure, guys, you are writing this point. Can anybody tell you what this will be the serial number point? Can anybody tell you who would have been writing the things right from the starting? Can anybody tell you what is the serial number of this point? Time
place preparation is always time bounded. Very great, Sumit. Very great. I am feeling very happy to get actually aware with the fact that you people are seriously writing. Thank you so much for it, because you yourself will feel that every point that has actually you have written is same going to reflect in your placement preparation journey along with that interviews. Great guys. So now I am coming to the next point, that is time planning. So time planning is as simple as that. Again, in I want fourth year and third year students again to focus on this point along with that second first year as well. But time planning is like for fourth year student, listen this next thing very carefully. If you are having your interview in 15 days, plan yourself accordingly, put yourself every day for it, and you can actually do the things. Now you people will say, sir planning कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये भी आप लोग बहुत पूछ रहे होंगे। इसका आंसर सीधे सीधे भाई मैथमेटिक्स के रूप में बताऊंगा। आई एम अ पर्सन हु लव्स मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के रूप में बताऊंगा। मैथमेटिक्स के अनुसार मैंने आपको सिंपल सी बात बता दिया, प्लेसमेंट को आप एक रूफ मानिए जो कि तीन पिलर्स पे खड़ा है। Many of you people would have seen tripod. Tripod, have you seen? Can you please comment in section in the chat? Have you people seen tripod? Have you people seen tripod? हाँ, वैसे तो भाई मैंने ट्राइपॉड कम देखा है। ग्रेट 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 ग्रेट। ट्राइपॉड कम देखा है, लेकिन मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग एक ट्राइपॉड की डेफिनेशन मैं करूंगा, और मैं ये भी कहूंगा अगर मैं गलत हो जाऊँ तो प्लीज मुझे सही करें। ग्रेट स्वराज, स्वराज वेरी ग्रेट। The thing which is having three legs, three pillars on which it is standing. So again, consider your preparation as placement preparation as that tripod, that camera, that is your preparation, and it is standing on three factors. First one is this, that is syllabus covering, that is quant and logical, English, everything, technical, everything, syllabus covering, syllabus covering. Second one is revision. Second one is revision of everything. And third one is mock test. Now it's totally up to you that how you will be writing these things. So now make sure guys you have written this point. Your placement, consider your placement preparation as camera, and the three legs are firstly syllabus covering, second one is revision, revision of interview, revision of everything what you have covered, quant, paper, solving paragraphs, solving this, everything it includes. And third one is giving mock test. And guys, make sure you just write, just let me tell you one point over here of mine, is that guys, you won't even believe some of the people, there is only one evidence of the thing which I am going to say is Suraj Bhute only. During my preparation, I have been covered these things. There was one common mistake that people have done, that they have not solved mock tests. And guys, you won't believe I have nearly solved more than 92 mock tests. I'm having record of everything. That's why I could able to share you the PDF that I'll be sharing after getting onto this session. In that thing I have written along with the websites, everything. Everything. More than 92 mock tests. Every day I used to give 1.5 hours for this thing. And results you can see yourself. And this is the common mistakes what many people have done who unfortunately couldn't able to get it. Because this is the only thing which will be going to help you at the end day, when you will be starting your mock your aptitude round. At that time, this is the thing with you, because the thing only which you are talking about, time. ऐसा आपने कई बार देखा होगा, आपको क्वेश्चन पूरा आता है लेकिन आप वो कर नहीं पाते। Can anybody tell you आंसर?
ऐसा क्यों होता है कि क्वेश्चन आता है फिर भी हम नहीं कर पाते? इसके कई जवाब हो सकते हैं, जिसमें से वो जवाब को हम चुनते हैं जो कि हमारे लिए इस टाइम इम्पोर्टेंट है। वो है वो टाइमर जो चलता है और वो आप पे लाता है प्रेशर। और अगर आपको इसको क्रैक करना है तो हम उसका काम बोल रहे हैं मॉक टेस्ट। Make sure guys in that PDF as well I have written this thing। आप में से जो इंसान मॉक टेस्ट नहीं लिख रहा है, मैं इतना बता सकता हूँ भाई कि वो बहुत स्ट्रगल करेगा एग्जाम में। एक हमारे दोस्त हुआ करते थे, जब मेरे से जूनियर पूछने आते थे कि सर ये बहुत रहता है, ये बहुत बैक रहता है, मैकेनिक्स बहुत बैक रहता है, M1 बहुत बैक रहता है, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा बहुत बैक रहता है। तो मैं उनको एक ही लाइन पे बोलता था, अगर आप रोज 1 घंटा मैकेनिक्स को नहीं दे रहे हो तो उस दिन अपनी डायरी में ये लिख देना कहीं पे कि मैं मैकेनिक्स में बैक ला रही हूँ या बैक ला रहा हूँ। ये मैं आज भी करता हूँ खुद के साथ और मैं करता रहूंगा unless I am not reaching my aim। Along with that, even after reaching my aim, I am doing this। Whatever that your target is, write down in it every time, because if you are not mentioning time, then you are totally out of the competition, totally out of the race। So time planning, that's why I try my best to tell you the time planning। So plan accordingly, 4K students, plan accordingly for your time, that how will you categorize your preparation, your interview, and by using this tripod example which I have already given and which will be get into the PDF। Now many of you people would be thinking, sir अगर PDF कर रहे हो तो पहले क्यों नहीं लिखते? तो thinking it or not, अगर आप ये थिंकिंग कर रहे होंगे तो इसका आंसर हम आपको देते हैं कि ये इसलिए नहीं दिए क्योंकि इफ वी आर फोकसिंग इन बुक वी वोंट बी एबल टू फोकस ऑन द पर्सन हु इज स्पीकिंग, और जो मैं स्पीक कर रहा हूँ वही वो किताब में लिखा है। इसलिए मैंने आपको पहले पीडीएफ में दिया, पीडीएफ में उसको बाद में दूंगा क्योंकि मैं उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट भी ऐड कर दूंगा डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन। अब ये हो गई हमारी टाइम, तो इसलिए 5 ईयर वाले भी प्रिपेयर करिए टाइम के अकॉर्डिंग कि आपको कैसे प्लान करना है। अगर आपको ये भी पूछना है कि सर हम प्लान भी कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको लास्ट में एक प्रपोजल देने वाला हूँ जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये हो गई प्रिपरेशन भी, ये होगा लगभग यहाँ पे हमारा हर पॉइंट क्लियर जिसके लिए हम इस सेशन में आए थे। Everything has done from my side what I want to deliver। Just one point is left, जिसके लिए अब यहाँ से मेरा जो मुझे आपको बताना था वो लगभग सब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से वो होगा जो आप मुझसे करवाएंगे। अब सर आप बोलेंगे क्या करवाएंगे, तो इसलिए मैं आपको अब वापस अब आपके कोर्ट में ये बॉल है कि अब आप आगे क्या करेंगे। वो ये है, अब 2 पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, एक ही पॉइंट है केवल, वो है ये कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि हर वक्त इंसान को सबसे ज्यादा सुनना अच्छा लगता है जर्नी, how he could able to complete journey of preparation। जैसा कि हम इससे पहले भी सेशन में सुने हैं, कोई एग्जाम टफ नहीं होती, कोई भी एग्जाम निकालना टफ नहीं होता, कोई चीज हासिल करना टफ नहीं होती, टफ होता है तो वो जर्नी। और अगर वो जर्नी आप सुनना चाहते हैं तो मैं मेरी सुनाऊंगा, अदरवाइज वी आर टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। This was the presentation which I had decided and I had delivered। Now I am putting 2 options। If you want, people want to hear my journey, how could I able to prepare challenges and this thing, then I will talk about my personal, otherwise I will here to take questions from you and I will answer it one after another। So now court is in your hand, till then I'll take a sip and you please people put your answer in the chat box what you want। If you want to get started with the questions, you are heartily welcome। If you want to hear my thing, then I will be able to deliver।
But now ball is in your court, and let me take one seat. Everything goes on public demand. Public, please put your demand. Public, please put your demand. Feeling very happy to see the replies. Students from fourth year, third year, second year, first year, guys, please put your demand now. Whatever your demand will be, we will move on with it. Okay, okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. So great, great. First, okay. What I think is that, guys, I will definitely share my journey. Prior to it, I would like to hear questions from you. और इन द सेम थिंग, वो कहते हैं ना, हम एक तीर से दो निशाने वो करेंगे. अब मैं आपके क्वेश्चन सुनूंगा और मैं उसको मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करूंगा. चलेगा? ये चलेगा? एक तीर से दो निशाने करेंगे. एक तीर से दो निशाने करेंगे. एक तीर से दो निशाने. ग्रेट, 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 ग्रेट. सो अब क्वेश्चन पूछेंगे आप, मैं उसका आंसर करूंगा बेस्ड ऑन माय जर्नी विद माय एग्जांपल. Now ball is in your court. Everybody, so as our students coordinator Nanishwar Mule, Gauri, Radhika, along with that Suraj, and all the students, now it's your turn. Whatever question you would be having, please ask. I am here to answer it at my best. Whatever question. Fourth year student, third year student, now turn is yours. Please turn on your mic and start asking questions. Waiting for your questions. Turn on your mic. Guys, I want to hear your sweet voice, yaar. You people belongs to my alma mater, GCOE, my motherland. So I want to hear you. Please turn on mic and ask the question. Mohini, Chanchal, Aishwarya, everyone who wants to ask question, please ask your question in mic so that I'll be able to talk with you. Hello. Yes, 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 yes. Yes, yes. Ayush and Mohini, two people have speaker. Okay. So who will take the privilege of asking first question? Sir, should I ask? Yes, yes, Ayush, please move on. My question is, what is TCS activity and will Yes, Ayush, your voice is breaking, dude. Please ask once again. Now, I will like to mention it's now question hours has been started. Questions are heartily welcome. We will understand. Along with that, Namrata, I would request Namrata Jadhav, whenever you want to speak, please get in. Then it's totally your wish, dear. Okay? Okay, Ayush. Yes, Ayush, are we audible to you? And if that would be the thing, no problem, Ayush, don't worry, brother. You can even comment in the section, I will answer. Sir, when you started your journey, sir? Yes, great, great. Nayan,
When I had started my journey, I would like to share one experience. In giving answer to this, जब मैं पढ़ना शुरू किया, मैं स्टार्टिंग से पहले से एक ही एम पे हूँ, वो है मुझे गेट प्रिपेयर करना है, आईआईएससी बैंगलोर में एडमिशन लेना है, इसरो का एग्जाम देना है और इसरो में एंटर करना। ये है मेरी विश। अब मैं बताता हूँ मेरी नीड। मेरी नीड ये है, ये थी उस टाइम पे कि मेरे घर की इकोनॉमिकल कंडीशन वीक थी। दूसरी बात, मेरी कॉलेज की फी थी 70,000 रुपीज, जो कि मैं नहीं भर सकता था। उसके कोई चांसेस नहीं थे। मैंने हर पॉसिबल सिचुएशन ट्राई किया, बहुत लोगों के पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, बैंक के पास गया, हर जगह गया। मेरी कॉलेज की 71,000 रुपीज फीस नहीं भर पा रहा था। मैं कंपनीज के पास गया, मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, ईश्वर की कृपा से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई फ्रॉम कायसॉफ्ट कंपनी। आई कुड एबल टू फील माय स्कॉलरशिप ऑफ 3 इयर्स। तो पहली मेरी नीड ये थी कि मुझे जॉब करना जरूरी होगा, क्योंकि इसके बाद अगर मुझे टाइम लगा तो मेरी एमटेक की भी फीस मुझे नहीं मिल सकती। इसीलिए ये थी मेरी नीड। मैं नीड के साथ गया, उसको स्वीकार करा, प्लेसमेंट तैयारी करना शुरू करा। मैंने लाइफ में ये एग्जाम्पल ट्राई किया जो कि मैं फिर चाहूंगा आपकी लाइफ में डायरी में लिखो। वो ये है विद पॉइंट नंबर 13, जो आपको बहुत ही आएगा, जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, वो है स्टार्ट फ्रॉम जीरो and don't stop until you reach the mastery of it. Start from zero and until don't stop until you reach maximum of it. आप देख रहे होंगे, इसका मुझे इंस्पिरेशन है मेरी ही जो मेरे पीछे है, स्वामी विवेकानंद जी। ये वो प्लेस है जहाँ पे मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई कर रहा हूँ। और इनका कोट है अराइज अर्ली एंड नॉट स्टॉप अनलेस द गोल इज रीच्ड। मैंने उस समय पर ये ब्रेन मिलाया, मैं जीरो से शुरुआत करूंगा और तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं इसकी मास्टरी करना चल जाऊं। तो जब मैंने शुरुआत करा, आई वॉज जीरो एट एवरी लेवल। ना मेरी इंग्लिश अच्छी थी, ना मेरे पास उस टाइम पे लैपटॉप था, कुछ भी नहीं था। सीरियसली स्पीकिंग, कुछ भी नहीं था। उस समय पर मेरे पास मोबाइल भी सैमसंग कोर 2 था। अगर आप नहीं था, कुछ भी नहीं था उस समय पर, क्योंकि मेरी नीड थी। मैंने ये जीरो से शुरुआत करा जब मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका था और मैं 3rd नंबर पे था। हमारा पहला पेपर हुआ मैकेनिक्स का। मैंने पूरे हॉस्टल को मैकेनिक्स पढ़ाया। रिजल्ट ये रहा, मैं मैकेनिक्स का टॉपर था विद 51 मार्क्स आउट ऑफ 60, और वो सब्जेक्टिव एग्जाम में मैं टॉपर था मैकेनिक्स का। मैं M2 के टाइम पे भी टॉपर था। ये मेरा ये हुआ। मुझे सिर्फ डांस आता था, मैं मिस्टर पर्सोना बना डांस के कारण। मैं अंदर आया, मैंने कॉलेज में स्टूडेंट्स को लेके डांस सिखाया। मेरे साथ के स्टूडेंट्स को, सूरज भुट्टे को ये पता है और नम्रता जाधव को भी ये पता है। डांस सिखाया, अंदर करा, यहाँ से जीरो से शुरुआत करा, एक एक लोगों को डांस में जोड़ने की। अल्टीमेटली मैंने कॉलेज में डांस क्लब बनाया और फिर उसको आगे स्टूडेंट्स को सौंप दिया। मैं एंटर किया, मैं कविता लिखा, कविता से एंटर किया, मैं मुदलियार जीता। मैं मैगजीन में पहले मेंबर बना, अगले साल मैं एडिटर बना, 3rd ईयर में मैं सेक्रेटरी बना और मैं अपने कॉलेज का बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड जीता और छोड़ दिया। मैं पर्सोना में आया, मैंने चारों भी साल पर्सोना पार्टिसिपेट किया। किसी टाइम में मैंने गाइड किया, और जिस दिन पर्सोना खत्म हो रहा था, भगवान ने मुझे पर्सोना की गिफ्ट के साथ मेरा कॉलेज जर्नी खत्म किया। डांस बोल दिया, पर्सोना बोल दिया, ऐसे मैंने प्रिपरेशन करा 3rd ईयर की स्टार्टिंग से, राइट फ्रॉम जीरो ऑफ एवरीथिंग। हर चीज किया, पेपर पढ़ा, 2-2 घंटा मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा हूँ, ये करा हूँ, प्रिपरेशन किया हूँ। घंटों घंटों सीनियर्स के पास बैठा, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मुझे गाइडेंस भी मिला।
मैं आपको बताऊं, मुझे इंग्लिश नहीं मिलती थी तैयारी के साथ, तो मैं आपको छोटा सा हैक बताता हूँ जो कि मैं करता था। मैं हर लड़की के साथ इंग्लिश में बात करता था। अब ये इनडायरेक्टली थोड़ा सा ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जब मैं बॉयज से बात करने जा रहा था इंग्लिश में, तो बहुत कम ही लोग मेरे को रिस्पॉन्ड करते थे, कई लोग मेरी हंसी उड़ाते थे, बहुत इंग्लिश झाड़ है। लेकिन गर्ल्स ने कभी मेरी हंसी नहीं उड़ाई, और मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता था। ऐसे करके मैंने हर चीज के जीरो से शुरुआत किया, थर्ड ईयर से शुरुआत किया। एंड रिजल्ट ये हुआ जो मैं अब बोल रहा हूँ। हमारे क्लास में 72 स्टूडेंट्स थे। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कहीं पे भी यहाँ पे किसी व्यक्ति की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे अच्छे से सुने। मेरे क्लास में 72 स्टूडेंट्स थे, उसमें से केवल 4 स्टूडेंट्स लोग ऐसे थे जो कि मैकेनिकल के होके 2 आईटी कंपनीज में प्लेस हो गए, क्योंकि हमारे टाइम पे सिर्फ 2 कंपनी आती थी, टीसीएस और कॉग्नी, बस खत्म। 2 कंपनी आती थी, वो हम लोग अप्लाई हुए। 4 लोग ऐसे थे जो दोनों कंपनी में बैठे। उसमें से 3 लोग वो थे जो कि कैट एस्पायरेंट थे, जिनके पास कोचिंग थी, और सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था, ना कैट एस्पायरेंट था, ना कोचिंग थी, ना कुछ था। बस ये था गोल, ये था प्लान्स, ये था एग्जीक्यूशन, और वो दोनों भी कंपनी में सिलेक्ट हो गया। और वो आपके सामने अभी बैठा हुआ है, सार्थक श्रीवास्तव। ये है मेरा आपके क्वेश्चन का आंसर विथ माय जर्नी। आई होप आप तक ये पहुंच गया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन सुनना चाहता हूँ। तो नयन, क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस आंसर से? Yes, sir. Very well. आप अगला क्वेश्चन सुनना चाहते हैं? Sir, can you please that listen वाला question, like I actually lost my connection in between. यस, तो क्या आप पूछना चाहते हैं, फिर से पूछिए। कि TCS NQT क्या है एग्जैक्टली, और ये डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट में कैसे हेल्प करता है? हाँ, टीसीएस एनक्यूटी एक एग्जाम है जो कि टीसीएस लेता है। देखिए, अगर मेरी कंपनी होती तो मैं हर कॉलेज में जाता। इससे अच्छा मैंने एक काम किया भैया कि मैं पूरे इंडिया को चांस दे रहा हूँ कि तुम मेरे कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे गेट है, कैट है, यूपीएससी है, वैसे टीएससीएस ने अपना एक एग्जाम निकाल दिया, टीसीएस एनक्यूटी। अगर आपको टीसीएस में नौकरी पाना है तो ये एग्जाम दो, प्रिपेयर करो, सिलेक्ट हो, इंटरव्यू दो, और टीसीएस में नौकरी पाना। आयुष भाई, आपको और कुछ पूछना है? क्या आप सेटिस्फाइड हुए? सर, वो एग्जाम कैंपस प्लेस रिलेटेड है? हाँ भाई, वो कैंपस प्लेसमेंट ही है, बस उन्होंने इसका नाम बदल दिया है। गंगाधरी शक्तिमान है यहाँ पे। ओके। अब आपको ये मीन शायद से अच्छे समझ आए। गंगाधरी शक्तिमान है, पहले वो गंगाधर था, फिर बाद में शक्तिमान बन गया। पहले वो कैंपस रिक्रूटमेंट था, अब उसको नाम दिया जाता है टीसीएस एनक्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी जी। गाइस, ये क्वेश्चन Sir, आप क्वेश्चन लेके आ सकते हैं। यस मोहिनी। sir, how to cover aptitude? हाउ टू कवर एप्टीट्यूड, पहला स्टेप है 2 किताबें जो लेकर आओ। पहला है आर.एस. अग्रवाल, उसकी हार्ड कॉपी लेके आओ। दूसरा है टाइम कोचिंग, जिन्होंने भी लगाया है उनसे वो किताब लो, उसका जेरॉक्स ले लो। दोनों को भी जीरो से शुरुआत करो, पूरी पढ़ाई करो, एक एक करके चैप्टर कंप्लीट करो, अपनी नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब ये सब कुछ एक के बाद एक। ओके, बुक लाओ, अपनी पढ़ो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, और अपने आप का एनालिसिस करो। Along with that, YouTube channels you can prefer YouTube channels कौन से प्रीफर करना, वो YouTube में PDF में लिखे होंगे। फिर भी मैं अभी बता देता हूँ, freshersworld.com एक बहुत फेमस है, और ऐसे कई आपको मिल जाएंगे। अब अनअकैडमी आ गया है, तो इतने सारे आंसर चैनल्स हैं जो कि आपको मतलब पढ़ा सकते हैं, और टोटली एब्सोल्युटली फ्री। Okay, sir. Thank you, sir. मोहिनी, आप सेटिस्फाइड हुए? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Yes. Sir, how to improve our English? Yes. The amount of work done and due. मैंने जैसे कि मैंने बोला हमने जीरो से शुरुआत करनी है और तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हम उसको मास्टर नहीं कर लेते हैं। इंग्लिश के लिए बहुत इजी सी बात है भैया, वो चीज जो मैंने किया वो ही बताऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस पेपर हमारे घर पे, मैंने इंडियन एक्सप्रेस पेपर रोज लेकर आता था जब मैं अमरावती में था। इंडियन एक्सप्रेस पेपर में 3 पेजेस है जो मैं पढ़ता था और पढ़ता हूँ, वही पढ़ना चाहिए। एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज और एक और है समरी जिसके ऊपर लिखी होती है कोई भी चीज का इंफॉर्मेटिव। वो पेजेस पढ़ो, पेजेस पढ़ने के बाद वही चीज जो हम हमेशा करते हैं, न्यू वर्ड उनको अंडरलाइन करो, उनको किताब में लिख लो अपनी, उसका गूगल ट्रांसलेशन से जाके हिंदी वर्ड करो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे कि आज मान लो आपने 10 या 15 वर्ड्स सीखे, तो आप उसको डेट आपने स्कूल डे में एक वर्ड सुने होंगे, अपन उसको बोलते थे वाक्यात उपयोग करा। आपने सुने हो क्या वो वाक्यात उपयोग करा? अपने क्वेश्चन आता था, एक म्हण दिली करायची आणि मग म्हटलं जायचं वाक्यात उपयोग करा, वाक्यात उपयोग करा। सो आई स्टार्टेड डूइंग द सेम। जो नए वर्ड की बात चिपकाते जाए जो मन में है उसको। अब जैसे कि अगर तुमको थैंक यू बोलना है, थैंक यू, यू आर वेलकम, और उनको रिप्लाई करना है इट्स माय प्लेजर, तो मैं चिपकाते जाता था प्लेजर। और मैं सीरियसली बताऊंगा कॉमेडी सेंस ऐसा था कि देखो मैं कॉलेज लाइफ में जब भी था, मैंने आपको ये हैक बताया, मैं बात करने को जाता था बॉयज से तो बॉयज हंसी में डाल देते थे या फिर नहीं करते थे। इसलिए भैया मैं जहाँ जहाँ पे था मेरे साथ वहाँ पे गर्ल्स का सराउंडिंग हमेशा था। मैं डांस क्लब में, मैगजीन में, एवरीवेयर, तो मैं भैया हर वक्त गर्ल्स के साथ इंग्लिश में बात करता था। चैट किया इंग्लिश, बात किया इंग्लिश, जो जितनी इंग्लिश में बात थी सब चिपकाते जाता था गर्ल्स को। और इनडायरेक्टली यू वोंट बिलीव, मेरे को सच में मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश हो गई। So this is one of the hack that I have done. Technically, on technical grounds, read newspaper the same way. If you do not like read newspaper, you are having option of novel. Novel में मैं 3 नॉवल का नाम लेता हूँ जो नॉवल तुमको इंग्लिश भी सिखा देगी और कई गुना आपको मदद करेगी, जो मैंने पढ़ा है और जो बहुत अच्छी है, जो आपको 100 चीजें और नहीं सिखाती है। पहली है जोसेफ मर्फी साहब की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सेकंड है जो मेरे को पर्सोना में गिफ्ट मिली थी, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल साहब की, बहुत अच्छी है। थर्ड वन है रॉबिन शर्मा जी की कोई भी किताब आप उठा लो, बहुत अच्छी है। बहुत ऐसे तो कई किताबें हैं लेकिन मैं आपको हर चीज नहीं बता सकता, इस वजह से मैं केवल आपको 3 किताबें बता रहा हूँ। और एक किताब है वेरी इंपॉर्टेंट जो कि एस्पायरेंट्स भी यूज करते हैं इंग्लिश के लिए, वोकैबुलरी के लिए, उसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इनको पढ़िए, ये वाला पैटर्न अप्लाई कीजिए। रीड इंग्लिश, read English, listen English, watch English, and along with that speak English. याद रखिए, read English, hear English, write English, watch English, and ultimately speak English. Speak English के लिए मैंने एक हैक किया, वो आप कर सकते हैं। Nextly, Okay, sir. Thank you. धीरज भाई आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Thank you. यहाँ पे एक हमारे दोस्त बोले, हाँ साहिल एक सेकंड भाई सिर्फ, यहाँ पे हमारे दोस्त ने बोले CGS आपका नाम यहाँ पे नहीं लिखा। You are still pursuing wish of ISRO? Yes, because it has no longer remained my wish, it is my need. Yes, I am preparing for ISRO. I won't leave. मैं कुछ भी करूंगा, मैं कैसे भी करूंगा, ISRO साइंटिस्ट तो बनूंगा। अब हम साहिल भाई का सुनना चाहते हैं, because it has no longer remained my wish, it is my need. ISRO साहिल भाई। हेलो सर। हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, मुझे ये जानना था कि हमारे कॉलेज में कोर कंपनीज की सिचुएशन क्या है, मतलब जैसे कि एलएनटी वगैरह आती है कि नहीं, मतलब उसके लिए कैसे प्रिपेयर करा जाए, थोड़ा बहुत मतलब। जी,
आपका क्वेश्चन में जो आपने बोले उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, वो ये मैंने पूरे सेशन में समझाने की कोशिश की। आप इसको हाँ सर, फिर से मैं समझ देखेंगे तो लगभग होगा। अब आती है सिचुएशन क्या है, तो भैया सिचुएशन डाउन है। एक क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा और क्लियर कट आंसर करूंगा। सिचुएशन डाउन है, अभी के हिसाब से सिर्फ एलएनटी आती है और वो मैकेनिकल का रिकॉर्ड है कि पिछले साल उन्होंने 2 लोगों को चुनी, उसके साल जब मेरी बैच थी तो किसी को भी नहीं चुनी, उसके बैच में से उसके पहली बैच में 2 लोगों को चुनी। तो फॉर सिविल फॉर मैकेनिकल यू कैन एक्सपेक्ट इफ कोर कंपनीज कमिंग 1 और 2, दैट्स ऑल। इसके अलावा एक और अडानी इलेक्ट्रिकल्स भी आई थी, तो उसने भी चुनी है स्टूडेंट्स को। तो कोर कंपनीज आती हैं लेकिन बहुत कम डिजिट में, उसमें लेंगे तो भी वो। तो अब आपको कोर कंपनी में ये होना है, तो आपको ये सोचना है वही बात कि मैं मेरी मार्केट वैल्यू कितनी इंक्रीज कर दूं कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं। अब हम ओके सर। सेटिस्फाइड हुए साहिल भाई, और आपको और आगे कुछ पूछना होगा तो मैं आपको उसका भी एक ऑप्शन दूंगा, ठीक है? रुके रहिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, यू आर ऑलवेज वेलकम। गौरी जी आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। गौरी आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गौरी। सर जैसा भी आपने बताया था कि मतलब जो ह्यूमन वैल्यू से मार्केट करना, तो उसे कैसे डेवलप करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? हाँ, गौरी जी आप एक बार फिर बोलेंगे ह्यूमन वैल्यू से आप क्या बोलना चाहते हैं फिर से? सर जैसा आपने बताया ना कि अगर हमें कोई कंपनी में बस सिलेक्ट होना है तो हमारी जो ह्यूमन मार्केट वैल्यू है, तो हमें मतलब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सही। ह्यूमन मार्केट वैल्यू के लिए आपको एक लाइन में आंसर, आपको आपके अंदर स्किल्स लानी होगी, स्किल्स का क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी और स्किल्स की क्वांटिटी भी इंप्रूव करनी होगी। जब आपको पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि गौरी टेल मी द पॉजिटिव, टेल मी योर स्ट्रेंथ्स, उस समय पे आपके पास स्ट्रेंथ्स की लिस्ट होनी चाहिए और मेक श्योर कि आपके पास हर स्ट्रेंथ के लिए एविडेंस है और हर स्ट्रेंथ को आप बता पा रहे हैं। जितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी उतनी आपकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद की बता दूं तो आप मुझे पूछिए सर आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, या मुझे जब मेरे इसरो के इंटरव्यू में पूछा जाएगा या जब मेरे कंपनी में भी मेरे को पूछे थे तो मैंने यही जवाब दिया था। मेरे को मेरे सर ने भी यही पूछे थे जब मैं कंपनी के अंदर आके था डीसीएस के अंदर, और मेरा पहली बार जब प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू लिया गया, सर ने मुझे पूछा तू मैकेनिकल का होके टीसीएस में क्यों आ गया। ये बहुत लोग जानना चाहते होंगे आंसर, और मैं इसको बोल रहा हूँ इसको अच्छे से सुनो एंड मेक श्योर इफ यू लाइक इट राइट डाउन इन योर डायरी। आप ये आंसर मत दो, लेकिन इससे जुड़ा हुआ आप आपका आंसर बना सकते हैं। ये आंसर आपको राह दिखा सकता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि मेरे को सर ने पूछा कि तू मैकेनिकल का होके टीसीएस में क्यों आ गया, जो आपका क्वेश्चन है अभी सिमिलर, मार्केट वैल्यू क्या है। तो मैंने यही उनको रिप्लाई किया सर मेरी मार्केट वैल्यू सबसे ऊपर है। उन्होंने पूछा ये क्यों, क्योंकि सर मैं एक डायनामिक पर्सनैलिटी हूँ। फिर वो पूछे कैसे, तो फिर मैंने उनको ये सब बताया जो मैंने आपको बता दिया। मैंने 0 से शुरुआत करा, एंड रिजल्ट टॉप तक गया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। वो कौन से, मैं जब शुरुआत किया मेरे पास सिर्फ मेरे को डांस आता था, सिर्फ मेरे को मैथमेटिक्स आता था, मैकेनिक्स आता था, मैथमेटिक्स मैकेनिक्स में अपना गया, डांस आता था, मिस्टर फ्रेशर बन गया, ये बताया जैसा मैंने आपको बताया। फिर प्लेसमेंट कविताएं लिखते आती थी, ये कर दिया। स्पीच देते आते थे, मुरलिया जीत गया, परसोना जीत गया, और जब कंपनी में आया तो ये जीत गया। इसीलिए जब आज मैं कंपनी में हूँ, who knows, मैं यहाँ पे भी टॉप तक चल जाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा। Who knows, मैं इसरो में विद साइंटिस्ट ज्वाइन करूंगा और सीनियर लीडर तक जाके जाऊंगा। दिस इज मार्केट आंसर। 0 से शुरुआत करो, टॉप तक जाओ, फिर अगले क्वेश्चन। This creates your human market value.
I hope any counter question, Gauri ji. Gauri ji, any counter? No, sir, no. ग्रेट। जैसे कि आपकी ह्यूमन आपने बोली ना, उसके लिए और मैं जोड़ देता हूँ। आज मेरे पास की टीसीएस की जॉब चल जाएगी, मैं पढ़ाने लग जाऊंगा। पढ़ाने की जॉब चल जाएगी, मैं डांस सिखाने लग जाऊंगा। डांस की जॉब चल जाएगी, मैं कविता लिखने लग जाऊंगा। कविता की जॉब चल जाएगी, तब तक मैं कुछ और तो कर ही लूंगा। दिस इज ह्यूमन मार्केट वैल्यू। Next question, please, from Gauri Kade and Vani. It will be very good if you are turning on your mic and ask question. Along with that, guys, I love to hear your questions, yaar. Please come up with the questions. करना डाउनलोड। Gauri ji or Vani? Hello, sir, am I audible? Yes, you are. Sir, my question is, if we got selected for one company on campus, then is it allowed to apply in another company on campus? Dear Gauri, first for your answer, first of all, I'll say there is thing called placement policy. Take reference of it from any student of your fourth year, who would be belonging to placement cell, training and TPO cell. Training and placement coordinator are there. To connect with them, get them PDF of placement policy, read it carefully, you will get answer of your question. Second question is that, second answer to your thing is that कि एज पर प्रेजेंट कंडीशन मैं बोल रहा हूँ, मैं आगे का नहीं बोल सकता। अगर आप एक कंपनी में प्लेस हो जाते हैं तो आप अगली कंपनी तब दे सकते हैं जब उसका पैकेज उससे डबल हो। ये है आपका आंसर, एक लाइन। और इसके लिए और इसको डिटेल में और पूछना है तो जैसे मैंने बोला, हम लोग सभी के क्वेश्चंस कवर करेंगे और मैं आप मुझे डिटेल में भी पूछ सकते हैं। अब वानी जी आप आएंगे इन, अब आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, वानी की तरफ ये है, नो प्रॉब्लम। वानी जी आप आपका क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और हम उस पर यस आपने लिख लिया। Place in a company agent may say that a person should have knowledge regarding that company work or they will give you time. Yes. Hello, sir. Sorry to interrupt. Yes, Namrata. Sir, can I give answer to one question? Yes. Please. You are heartily welcome here. Yes. वानी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब नॉलेज चाहिए कंपनी का करके। कंपनी आपको टाइम देती है हर चीज़ सीखने के लिए। लाइक कुछ कंपनी की इंटर्नशिप भी होती है, उसमें वो पूरा वर्क कल्चर क्या आगे होता है सब बताते। और अगर इंटर्नशिप नहीं भी हुई तो अलग से ट्रेनिंग पीरियड रहता है हर कंपनी का, उसमें वो पूरा सिखाते हैं उनको। तो ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं है कि सब कुछ पता होना चाहिए। आपको जितना पता होना चाहिए वो सर ने बताया है, उतना ही सिर्फ कर लो, हो जाएगा। अब वानी के ऊपर, वानी की क्वेश्चन पे मैं एक पॉइंट पे फिर आपको लेके आऊंगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं हर पॉइंट को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ छुपा है। वानी जी ने मुझसे पूछे कि हमको, देखो अभी भी वानी जी जो सोच रहे हैं वो कंपनी के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि कंपनी हमको टाइम देती है या नहीं। मैंने आपको फिर बताया था, हमको ये नहीं सोचना है कि कंपनी हम या इंटरव्यूअर हमसे क्या पूछेगा, हमको ये सोचना है हमको उसको बताना क्या है। इसलिए आप ये सोचिए कि मुझे क्या क्या करना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे मेरी प्यारी दोस्त वानी, तो आप बिल्कुल आप वर्क करने लग जाएंगे और आपको टाइम दिया जाता है, इंटर्नशिप्स दी जाती है और आपको आराम से समय मिलता है। और आप ये समझ ले आप अकेले नहीं हैं, वानी जिस जगह पे खड़ी है उसी पे सभी लोग खड़े हैं, सभी लोग। और जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो आपको सिलेक्ट कर रहा है, वो भी कभी पर्सन आपकी जगह पे था। तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वरी मच। इंस्टेड ऑफ वरिंग, स्टार्ट पुटिंग एफर्ट एंड सिंपली स्टार्ट प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन वी हैव guys? If you would be having next question, I am eagerly waiting to hear your questions. Any student with any question? Hello, sir. Yes. Sir, any platform for give the mock test for free?
Great. For giving mock tests for free, platforms are mentioned in the PDF that you will be provided, the websites. I am uttering their name as well. Test Spot, you can visit and you can solve previous year question. Simply write down in Google search bar, you will get n number of free websites. All we have there. Out of them, which I had given is Test Book, Test Spot. Along with Okay. that, with the Unacademy, now there has been many free mock tests. Thanks. Thank you. Next question from any of you guys. Just I found one thing यार, CS और IT के स्टूडेंट्स के ओर से कोई क्वेश्चन नहीं आया. I would be wondering that they people would be very in the case. Okay, great. So guys, now I am once again requesting if you would be having any question, don't fear for anything. I am simply as So- yes, yes, Mohin ji. सर अगर आप मतलब प्लेसमेंट में सिलेक्ट हो गए कंपनी के लिए, टीसीएस के लिए वगैरह, और फिर आपने इसरो में अप्लाई किया और इसरो के इंटरव्यूज तो थोड़े लेट होते हैं, और वहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो गए तो ये प्लेसमेंट वाली जो कंपनी है वो आप कैंसिल कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमको पूरा राइट है इस चीज का. ये हमारा राइट है. अगर मान लीजिए आपको एक नौकरी मिल जाती है तो आपको यहाँ पे एक नोटिस पीरियड डालना पड़ता है आपके एचआर के साथ मिलकर 3 months बिफोर. जैसे आपको रिटायरमेंट कंपनी लीव करना है फ्रॉम जनवरी, तो जनवरी से 3 महीने पहले आपको नोटिस लिख के अपने एचआर को दे देनी होगी, और फिर 90 डेज तक वो आपकी पूरी प्रोसीजर कर देंगे और 90 डेज आखिरी दिन होगा आपका कंपनी में. Along with that, they give you certificate that you have worked for this organization for this much time. और यही चीज आपको इसरो में भी काम में आती है. मैकेनिकल थर्ड ईयर. Okay, great. You are from mechanical third year. Okay. If you would have been present in last year college gathering, then you would have got this thing. अपने कॉलेज में कंपटीशन होता है. We are admitted. Okay, no problem. In our college, there is competition which is held in our gathering, which is for the title of best personality of GCOE, and it is called as persona competition. So in that competition, I had won the award of best personality of GCOE 2020. That is called as Mr. Person. I hope now I am able to get you. Deepali ji? Yes sir, thank you sir. Great. So guys, again requesting for the new questions, and if questions are completed, now we will be running this question session, and you would be thinking right from the start. I was mentioning one point that I will tell you one thing at last. That is this. Naneshwar has pasted one link in the description. I simply so in that thing, in Naneshwar, have you pasted? No, sir. Just I'm just pasting it. Okay. Yes, Naneshwar will paste one link in chat box. You simply have to just get it on that link, and in that thing, if is there any question remaining of yours, if you want any kind of new guidance, if you find any kind of new demands, then you are heartily welcome. Guys, you will get to know, in order to guiding the students, we have already done a very good planning with future sessions, but we will get the sessions only on the public demand. So if your demand will be there, we will be coming up with more sessions on detailed discussion on how to handle the interview, everything. जैसे साहिल ने हमको बोले थे कि सर मैकेनिकल के लिए कुछ बताओ या कोर के लिए कुछ बताओ, तो उनके लिए भी हम लेंगे डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये डिमांड आप ये लिंक के थ्रू दे सकते हो. Along with that, I request you people, if you could actually give me feedback for this session. Again, there is one field present in the feedback form only. It will
not take more than 30 seconds for filling that form. You please fill that form. And with this, I'm saying that if every question has been done, I'm saying that this session is completed from my side. I felt very happy to talk with you people. I felt very, I consider myself very fortunate to get in touch with you. I would love to get in touch with you in future as well. I hope I could able to deliver something good to you. And please, I request to have feedback from you. If there would be any additional thing, additional question, you can mention in it. If there would be any demand from you, sir, please guide us on communication skills. Sir, please guide on personality development. Sir, please guide on specifically how to handle the interviews, everything. Then everything will be taken depending on the public demand. Okay, with this, from my side, the session is over. You people can give your feedback. I thank you, all of you, to get into this thing. You are, thank you to all of you. Thank you to Namrata. Thank you to Naneshwar, Gauri, Dipali, Gauri, every people who have participated, who have asked the question, Dheeraj, as well as Swaraj, Sahil, you people who have been very attentive in this. Along with that, I tell you, best wishes for Ganesh Chaturthi, and with this, we are winding up the session. Thank you so much for everything. And God bless you guys. If you have anything, you can connect with me. You would be having my details. I will paste my details in comment section as well, and you can get from anywhere. So with this, thank you for the session. Thank you for attending. गणेश चतुर्थी की आपको शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया। भगवान आप सभी को बहुत सक्सेस दे, बहुत ज्ञान दे, आप मेहनत करें और आप जरूर बहुत अच्छे इंसान बने, बहुत अच्छे इंसान। With this, thank you so much and winding up the session. So bye guys, we'll meet very soon. Just one thing I would like to cross check with Radhika. Radhika, are you there in session? Yes, sir, I'm here. Yes, thank you so much for Radhika. Thank you so much, Radhika, for helping us throughout the session. Just want to cross check. Has this recorded totally? Yes, sir. Yes. So can you please help us to help the students with the recording where it will be present? Yes, sir. We'll be doing that work. Okay, great, Radhika. Radhika, extreme efforts taken from you. Thank you so much for it, and all the people. If you would be having any question to ask, you can ask me in personal. Okay. With this, we are winding up the session. Thank you so much, guys, for everything, and God bless you. Thank you so much, Namrata. Hope to have same support from you in next days. And Suraj sir, if you would be having in the session, please help me with your feedback. And everyone, bye from my side. Thank you, Lots sir. of love. Thank Lots you, of Thank love. you, sir. Thank you, sir. Thank you, Namrata ma'am, and thank you everyone for attending the session. Lots of love to all of you. Best wishes. God bless you. Our motherland GCOEA. Jai Shri Krishna.